वेलकम यू ऑल हियर। पर मेरी एक रिक्वेस्ट होगी आप सब लोगों से कि हम कोई साइड में कोई और बात नहीं करेंगे। वट जो हम यहाँ बात करेंगे वही बात ओके, क्योंकि बहुत सेंसिटिव इशू है कश्मीर में और हम इसको किसी और ढंग से कोई बाहर चली जाए उसका एक बहुत बड़ा असर पड़ता है। और ये कश्मीर एक बड़ी नाजुक जगह है और इसको बड़े सेंसिटिव तरीके से हैंडल करना पड़ता है। तो इसलिए मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, हम यहाँ बैठे हैं, आपको जो कुछ चाहिए वो पूछ लीजिए। पर मेरी एक और रिक्वेस्ट है आपसे, हम सब लोग कश्मीर में भाई हैं और ऐसे हालात में हमारी कोशिश है कि भाई किसी भी चीज़ को जिसको उभारा गया या उस पर बहुत कुछ कहा गया उसको पर्दा डालने की कोशिश करें। और हम चाहते हैं कि यहाँ का भाईचारा वो उसी तरह बना रहे जिस तरीके से कई सदियों से हमारा यहाँ चल रहा है। हम सुख दुख के साथी हैं। तो इसलिए मैं एक स्टेटमेंट पढ़ूंगा, वो आप ले लीजिए, उसके बाद आप पूछेंगे, मोस्ट वेलकम। पर मेरी एक रिक्वेस्ट यही है कि हम इस चीज़ को अब एक डायरेक्शन से देना चाहते हैं कि यहाँ के अमन को बहाल करने में हम सारे लोग मिल के एक रोल अदा करें, जिसके लिए मैंने आप लोगों को यहाँ बुलाया है, जिसके लिए बहुत शुक्रिया। Dear friends, the Sikh community in Jammu and Kashmir has been living in harmony with the majority Muslim community. Over the years, many attempts were made to create a wedge between the two communities by the vested interest. However, the nefarious design got defeated due to the strong bond that exists between the two communities. Since some unfortunate incident came to the fore in the recent past, it is important that both Muslims and Sikhs maintain the communal harmony and brotherhood. The people need to remain vigilant and ensure that the congenial atmosphere does not get vitiated. Since both the communities have supported each other through thick and thin, it is the responsibility of the members of both the communities to continue with the synergy. I, on behalf of the Sikh community, would request that the Inter-Caste Marriage Act is implemented in Jammu and Kashmir. Once this act is put in practice, at this place, the inter-caste marriages would come to an end automatically. This would safeguard the interests of people belonging to different faith and religions. The element who want to have mileage out of such marriages would also face an inevitable defeat. Over the years, members of elite political families of Jammu and Kashmir have been indulged in inter-caste marriage, but surprisingly, nobody pointed finger towards them. Whenever such an incident happens in a normal family, the issue gets blown out of proportion. This needs to be analyzed, and people should be vigilant so that the opportunistic politician does not exploit them. At the same time, it is also important that anti-conversion law is implemented in Jammu and Kashmir. This would stop the forceful conversion of people belonging to any religion whatsoever. As a result of the same, friction between the different communities would also come to an end once for all. There would be no tension between the communities and all the people would live without fear. The APSEC has over the past many decades thrived for betterment of minorities, and the committee would continue to play such a role in future as well.
we have been meeting top-notch authorities, both in the central government and erstwhile state, in this regard, and continue to knock at the doors of the concerned stakeholders. Most of the demands of Sikh community remain as it is, since they have not been fulfilled by the people and the government. Thank you. सर मैं आपसे एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, जम्मू कश्मीर के अंदर फोर्सिबल कन्वर्जन को लेकर के दिल्ली सबसे पहला नाम सीसा रहा, उसके बाद जीके साहब रहे, उसके बाद सरना साहब आए। ये तीनों ही जो लोग हैं ये पूर्व अध्यक्ष हैं, दो लोग इनमें से, और एक अभी प्रेसिडेंट हैं गुरुद्वारा दिल्ली कमेटी के। आपको नहीं लगता कि दिल्ली के अंदर गुरुद्वारा की जो पॉलिटिक्स चल रही थी वो कश्मीर नाम की लेबोरेटरी में उतारी गई, ताकि आने वाले इलेक्शन जो होने वाले हैं रिसेंटली, उन इलेक्शंस में जो बंदा यहाँ से कुछ ज़्यादा ही लेकर के जाएगा वो सीट जीतेगा? क्या आपको नहीं लगता कि दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी की पॉलिटिक्स कश्मीर में एक्सपेरिमेंट करेगी? क्योंकि आप लोग बीइंग ए कश्मीरी रिप्रेजेंटेटिव सिख फोरम पिछले 3 दिन में कहीं नजर नहीं आए। आप इस बात को समझ गए होंगे, आप इस बात को समझ गए होंगे कि हम कश्मीर के लोग किसी भी ऐसी चीज के साथ हिस्सेदारी नहीं करते। जो भी कुछ है वो हम अपने कश्मीर लोगों के साथ मिलजुल के बात करते हैं। आज 2-3 दिन से उनकी सियासत जो थी यहाँ पर, जिस चीज के लिए वो आए, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, पर हम लोग चाहते हैं कि हम कश्मीर के इस माहौल को बिगड़ने ना दें, तो इसलिए हम इस सियासत के साथ ताल्लुक नहीं रखते। जगमोहन जी, ये 3 केसेस की बात, 4 केसेस की बात हो रही है पिछले कुछ दिनों से कि फोर्स्ड कन्वर्जन हुआ है, जबरदस्ती हुआ है, उनका धर्मांतरण हुआ है और फोर्स्ड शादी हुई है। हुआ क्या है? क्या धर्मांतरण हुआ है? क्या शादी हुई है? अगर शादी हुई है तो कल एक लड़की की दोबारा फिर शादी करवाई गई, तो क्या सच्चाई क्या है ये तो बता दीजिए। मैंने शुरू में एक बात कही थी कि हम उन चीजों को और दोबारा ना उछालें। अगर हम हालात को ठीक करना चाहते हैं, हम सिर्फ इस भाईचारे को ही बनाए रखने के लिए उनको दफन करें जो कुछ हुआ। लेकिन हम ये यहाँ इसलिए मीडिया से मिलने आए हैं कि हम यहाँ के बाशिंदे हैं, हम आपस के भाईचारा को बनाए रखने के लिए हम सिर्फ आपसे शुक्रिया अदा कर रहे हैं सबका। लेकिन पूरी दुनिया में जो इमेज गई है वो ये है कि कश्मीर में सिखों के साथ जबरदस्ती हुई है, उनकी लड़कियों की का जबरदस्ती धर्मांतरण हुआ है, उनके साथ जबरदस्ती शादी करवाई गई है, और ये ठीक उसी पैटर्न पे हो रहा है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में हो रहा है। इस बात में कितनी सच्चाई है, पहले ये क्लियर कीजिए। मैं आपको इसलिए स्टार्टिंग में ही कहा था कि हम ये सब सियासी बातें जो लोगों ने की हैं, और उन लोगों का मकसद था, जैसे मेरे दोस्त ने कहा कि ये दिल्ली की, पंजाब की और यूपी की लड़ाई कश्मीर हमारे सीनों पर लड़ना चाहते थे। हम इस चीज को अलाउ नहीं मान सकते हैं रना साहब की जो पॉलिटिक्स पिछले दिनों चली, आप सामने इसलिए नहीं आए क्योंकि आपको सच्चाई मालूम थी कि शायद धर्मांतरण ना हो? देखिए, हम हमारी जो यहाँ सोसाइटी है कश्मीर की, जिसको हम कश्मीरियत कहते हैं, इसका प्यार, इसका खलूस आपने देखा है 30 साल में कितने हालात खराब हुए। कश्मीर का सिख यहाँ पर यहीं बैठा रहा और आपके सुख दुख में साथी रहा, और बहुत सी मुसीबतें आई, छठी सिख बुरा हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ। क्या आपने देखा कभी छोड़ के गए? आज कुछ लोगों ने हालात बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन आज फिर उसको हम नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा मैसेज जो है यही है कि हम अपने भाईचारे को, जो मैंने अभी प्रेस नोट में बोला कि हम इस भाईचारे को बनाए रखना चाहते हैं। जो कुछ लोगों ने कहा उसको हम आगे के लिए दफन कर सुनने में ये आ रहा है जो कल लड़की जिसकी शादी हुई कल सुबह, उसके साथ जबरदस्ती शादी की है, तो उसको आप बोल रहे हैं कि वो दबाए, उसके साथ नाइंसाफी हुई, तो हम चुप रहना है। मेरे ख्याल हमें स्टार्टिंग में इसीलिए कहा कि यहाँ पर कुछ सियासत जो हुई इस चीज को लेकर हम उसको एक तरफ कर देंगे। सर बीइंग एज ए चेयरमैन मैं अपने कोलीग को क्वेश्चन ऐड करना चाहूंगा जो उन्होंने क्वेश्चन आपसे किया कि क्या जबरदस्ती कन्वर्जन करा के उनके साथ शादियां कराई जा रही है जैसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान में, उसका जवाब आप बीइंग एज ए चेयरमैन दे दीजिए। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। सर ऐसा भी आप डिमांड कर रहे हो कि एंटी हम ये कह रहे हैं लाए जाए और जो इंटरकास्ट मैरिज उस पर रोक लगानी चाहिए। क्या आप समझते हो कि फोर्सफुल मैरिज हो रही है तो इसलिए रोक लगानी चाहिए? क्या एक इंसान को ये हक नहीं है कि वो चूज करे कि वो कहाँ शादी किसके साथ करे? क्या आप उस चीज पे रोक लगाना चाहते हैं? मैं आपको एक चीज पहले बताऊं कि मैं एज ए कश्मीरी होने के नाते मैं इस कश्मीरी सोसाइटी, इस फैब्रिक के लिए कंसर्न हूँ।
मैं छोटी सी बात रखूंगा 3 मिनट में आपके सामने। मेरे यहाँ पर कम से कम 6,000 लड़कियां जो बिहार और बंगाल से आके यहाँ बिकी हैं, शादी हुई है, जिनकी आपको मालूम है, इस पर काम करिए आप। उसके अलावा जो मेरा नौजवान है यहाँ पर, जो यहाँ से पढ़ने गया, 30 साल में यहाँ पढ़ाई का माहौल नहीं था, वो लोग कर्नाटका, पंजाब, हिमाचल, दिल्ली सब जगह पढ़ने गए। उनमें से 6 से 7,000 बच्चे जो हमारे हैं नॉन मुस्लिम से शादी करके आए हैं। आज मेरी परेशानी एज अ सोशल वर्कर, सिख लीडर नहीं, पॉलिटिशियन नहीं, एज अ सोशल वर्कर जो मेरी 50 साल जिंदगी यहाँ बीती है, मैं कंसर्न हूँ मेरी मेजॉरिटी कम्युनिटी की वो बहनें जिनकी शादी, जो वो 15,000 शादी बाहर के लोगों के साथ हुई, मेरी 15,000 बहनें कहाँ जाएंगी? मैं उनके लिए कंसर्न हूँ। इसलिए हमारी कश्मीर की जो नौयत है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है पूरी दुनिया से, हम उस पर कंसर्न है। मैंने स्टार्टिंग इसलिए आपको जोर देके कहा कि हम पुरानी चीजों को दफन करें। कुछ लोग आए, सियासत हुई, बहुत कुछ हुआ, हम उन चीजों की ओर नहीं जाएंगे, लेकिन जो एटमॉस्फेयर यहाँ उन्होंने माहौल बनाया, हम उस माहौल को दोबारा ठीक करने की कोशिश जो है वो करने की करेंगे। एक सवाल मेरा इसमें रहेगा जी, बात रखने के लिए हिंदुस्तान के 4-5 दिन से मसला चल रहा है और आप लेट आ गए, और इसी में कंटिन्यूएशन ये रहेगा मेरा कि पूरे हिंदुस्तान में भी एक तरह का हम को एजेंडा चलाया जा रहा है। सिरसा साहब द्वारा दिल्ली में प्रदर्शन किए गए, मुंबई में प्रदर्शन हो रहे हैं, कर्नाटक में प्रदर्शन हुए, जम्मू में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि वो अपनी पॉलिटिक्स के लिए आपका जम्मू कश्मीर का, कश्मीरियत का नामकरण की तरफ बलि चढ़ा रहे हैं, और आप अपने एंड से क्या करेंगे कि वो सारे जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो सबसाइड हो गए? जो आज हम आपने देखा यहाँ पर 2-3 दिन से जो मीडिया के लोग बाहर से ये थे, जो बाहर के लीडर यहाँ आए, आज आपने इनमें से कोई आदमी वहां देखा? उनके साथ कुछ ऐसे ही ताकतें थी जो उस तरह की थी। लेकिन आज हम कश्मीर की एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी आपसे यही कह रही है कि हमारे सीनों पर गोली रख के नहीं चलेगी और न चलने देंगे। हम यहाँ के माहौल को हमेशा एक भाईचारा के तौर में रखेंगे, जिसके लिए ये कश्मीर मशहूर है। जो सर ये मान के चले कि कोशिश कर रहे हैं उनके लिए आप मैसेज क्या होगी? हमने उनसे पहले ही कह दिया है कि साहब जो कुछ आपने किया आपका शुक्रिया, पर यहाँ के इस माहौल को बिगाड़ने की कोशिश मत करें। तो सर ये मान के चले कि वो कहीं ना कहीं से अपनी सियासत को लेकर कश्मीर का खेलना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।